Hello students, this period is about type of chemical reactions। यानी हम इस पीरियड में जानेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियोस में दो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दिया है, एंड दोज आर exothermic and endothermic on the basis of heat changes. These two type of chemical reactions are already introduced. Now we are going to study about 5 more types of chemical reactions. Like the first one is combination reaction, decomposition, displacement, double displacement, and redox reactions. Okay, these are 5 types of chemical reactions. So how to understand combination reaction? A combination reaction is a reaction in which two or more reactant combine to form one product. Only one product will be there. Means there will be two reactant, or there can be more than two reactants as well, but product will be just one. For example, let it be A, let it be B, two reactants, and product is C. Okay, or from chemical reactions we can take example of like calcium plus oxygen forms calcium oxide, or magnesium is boiled in air and forms magnesium oxide, or carbon is burned, it gives carbon dioxide. These are all examples of combination reactions. Okay, now let us see decomposition reaction. So what do you have to consider always? Means number of reactant must be more than 2, number of reactant should be more than 2, and number of product always just 1. So I think that is clear. And then decomposition reaction. Decomposition reaction का मतलब क्या है? Decompose होना means breaking. Decompose means breaking. यानी किसका breaking होगा? A complex molecule into two or more simpler molecules. Decomposition means you have to consider the word breaking. When breaking of a complex molecule into two or more simpler substances like ferrous sulfate. When it is heated, this triangular sign represents heating. When FeSO4 is heated, it forms Fe2O3 and sulfur dioxide as well as sulfur trioxide is released. These two gases are released. So a single substance FeSO4 gets decomposed into 3 substances. One iron oxide, second one is sulfur dioxide, and the other is sulfur trioxide. Means only one reactant is there, and these 3 products are there. 3 products means when you find in a chemical reaction one reactant and resulting into multiple products, that those reactions can be called as decomposition reactions. Now let us move to displacement. You can take another example also, like silver chloride NaCl decomposes in presence of sunlight,
and it decomposes to silver and chlorine. And one more example is there, when water is electrolyzed. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं, यानी इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर सेपरेटेड. मीन्स water decomposes into hydrogen and oxygen when electricity is passed through it. So these three are examples of what? Decomposition reaction. But one thing is to be considered here. क्या कंसिडर कर रहे हो आप? ये देखो, इसमें FeSO4 को हीट किया गया है, इसमें AgCl को सनलाइट में एक्सपोज किया गया है, उसमें हीट नहीं किए हैं, और यहाँ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा है. यानी तीनों अलग अलग डिकम्पोजिशन जो है वो किस कारण से हुआ है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करने के कारण. मीन्स हियर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट, हियर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज photons, means particles of sunlight, photons, and here the form of energy is electricity, means the sources are different, electrical energy. So there are three examples that shows decomposition because of different sources of energies. So these type of decomposition reaction where a substance gets decomposed because of heat is called thermal decomposition. Okay, and a kind of decomposition where sunlight, energy from sunlight acts as the source of energy for decomposition, that means photons. Such reactions are called as photochemical or photolytic decomposition, photolytic or photochemical decomposition. And those decomposition reactions where electricity perform as the source to decompose this electricity or any substance, those type of chemical reactions are called. This is an example of electrolytic decomposition. So we find three types of decomposition reactions: thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. This is an example of thermal decomposition, this is an example of photolytic decomposition or photochemical decomposition, and this is an example of electrical decomposition. Okay, now let us move to displacement reaction. आप में से अगर किसी को एग्जाम्पल या कुछ टर्म नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Displacement means to move from, means any substance will be removed or a substance will take place of another substance. To move from some place. For example, see, when sodium reacts with water, what happens? It forms sodium hydroxide and hydrogen gas is released. Okay, when sodium reacts with HCl, it forms NaCl and hydrogen is released. So consider this example, it will be better to understand. It will create some complexity. So sodium reacts with hydrochloric acid, forms sodium chloride and hydrogen gas is released. What is happening here? Here there is substance of HCl, substance of hydrogen and chloride है. यहाँ क्या हो रहा है आप सब अच्छे से समझिए.
सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो अभी कंपाउंड किसका है? कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें जो दो एलिमेंट हैं वो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एक साथ हैं। अब प्रोडक्ट साइड में आप क्या कहाँ देख रहे हैं? कंपाउंड, ये कंपाउंड है प्रोडक्ट साइड का, ये रिएक्टेंट साइड का है। तो आप क्या देख रहे हो? आप देखते हो कि प्रोडक्ट में क्लोरीन तो अपनी जगह पर है, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ नहीं है, यानी हाइड्रोजन अलग हो चुका है ना? ये हाइड्रोजन क्या है? अलग हो चुका है। किसने अलग किया है? क्लोरीन की जगह, क्लोरीन के बगल में कौन है? पहले हाइड्रोजन था, अब कौन आ गया? सोडियम आ गया। इट मीन्स व्हाट? सोडियम हैज टेकन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव्ड इट फ्रॉम इट्स प्लेस। मीन्स sodium has displaced hydrogen from its compound, and this is called what? Displacement. It means displacement of hydrogen from its compound. Therefore such reactions are called as displacement reaction. Means a reaction in which more reactive element does what? Replaces or takes the place of less reactive element. Means एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लेता है और उसको उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है, वैसे केमिकल रिएक्शंस को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? अब देखिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप कॉमन एग्जांपल देते हो कि FeSO4 के सॉल्यूशन में अगर कॉपर सल्फेट के, चलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन नील डाल देते हैं, नील, जब आप आयरन नील डालते हो तो होता क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है? और ये ब्लू कलर से क्या कैसा होने लगता है? धीरे धीरे फेड होने लगता है, यानी उसका जो कलर है वो धीरे धीरे कलरलेस होने लगता है, फिर धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो होता क्या है? जो कलर चेंज हो रहा होता है वो रिएक्शन के कारण, रिएक्शन में क्या हो रहा था? आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, and so iron displaces copper from its solution and takes the place of copper and forms ferrous sulfate. Here it is iron, here it is copper sulfate, compound is copper sulfate in reactant side, but in the product side we find iron sulfate. So where do we find that which element is more reactive or which one is less reactive? For that to help you, there is a series called reactivity series. Actually it is activity series and it is for showing relative reactivity of elements. It is already given in your book, I am not discussing that here. So the elements which are above in the reactivity series, active or activity series, are considered to be more reactive, and it is like potassium, sodium, magnesium, calcium, like that. It goes on continuously. So this is a kind of displacement reaction. How to recognize that whether a given chemical equation is of displacement reaction? See clearly, किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इक्वेशन को पहचानने के लिए तरीका क्या है? आप पहचानो कि दोनों रिएक्टेंट में, पहले तो ये जानना होगा आपको कि दो रिएक्टेंट है या नहीं। अगर दो रिएक्टेंट है तो फिर देखो दो प्रोडक्ट है या नहीं। अगर दो रिएक्टेंट भी है और दो प्रोडक्ट भी है, दोनों है, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट में एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए और एक कंपाउंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक एलिमेंटल फॉर्म में है, एक कंपाउंड के फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। और जो प्रोडक्ट साइड में है उसमें भी वही स्थिति है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे
कि दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट हो और साथ ही साथ एक एलिमेंटल फॉर्म में हो और दूसरा कंपाउंड के फॉर्म में हो, तो वैसे कंडीशन में आप समझ जाइए कि वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट से डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज होगा, दो रिएक्टेंट इसमें भी होंगे, दो प्रोडक्ट इसमें भी होंगे, बस फर्क क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंटल फॉर्म में था, दूसरा कंपाउंड होता था। ठीक है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। वही अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों होगा कंपाउंड, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड, यानी दोनों रिएक्टेंट भी कंपाउंड हो गए, दोनों प्रोडक्ट भी कंपाउंड हो गए। इसमें भी ये क्या होता था, एक कंपाउंड होता था और एक एलिमेंटल फॉर्म में होता था। बट यहाँ क्या है, यहाँ दोनों रिएक्टेंट भी कंपाउंड होंगे, दोनों प्रोडक्ट भी कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, कोई भी रिएक्टेंट के फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होगा, एलिमेंटल स्टेट में। ठीक है, मतलब यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए ए एक्स है, दो एलिमेंट है यानी कंपाउंड है। यहाँ देखिए दूसरा रिएक्टेंट बी वाई, यहाँ भी दो एलिमेंट है यानी ये भी एक कंपाउंड है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ दोनों में देखिए, दोनों में क्या है, एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा निगेटिव आयन होगा, इसमें भी एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा निगेटिव आयन होगा। यानी हमने ये अपने मन से कंसिडर किया कि ए पॉजिटिव आयन है यानी कैटायन है, एनायन है, ये बी कैटायन है और वाई एनायन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, एक का कैटायन दूसरे एनायन के साथ कंपाउंड बनता है, दूसरे के एनायन के साथ। ठीक है, यानी जब ये पूरा का पूरा एक ही मिक्सचर में आ गया, अब इसमें क्या है, ए प्लस एक्स माइनस बी है और बी प्लस वाई माइनस बी है। तो ये प्लस और वाई माइनस अब कंपाउंड बनाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस, और बी और एक्स एक साथ कंपाउंड बनाते हैं। यानी अब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, ए एक्स से अब ए वाई हो जाता है और बी वाई से बी एक्स हो जाता है। मीन्स हो क्या रहा है यहाँ, दोनों आयंस मतलब दोनों कंपाउंड में देखिए तो आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है, अदला बदली हो जा रहा है, जिसके कारण इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी एक दोनों आयन में, दोनों कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक्स वाई के जगह पे चला जा रहा है और वाई एक्स के जगह पे चला आ रहा है, ये भी कह सकते हैं। या फिर दूसरी तरफ से बोल सकते हैं ए जो है वो बी के जगह पे चला जा रहा है और बी वाई ए के जगह पे चला आ रहा है। दोनों में से कोई तरह की तरीके से आप समझ सकते हो। और चूंकि दोनों आयंस का क्या बोल रहे हैं, किसी भी तरह से आप देखें तो आयंस का क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड से आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी दोनों का आयन, दोनों ही कंपाउंड में आयन से एक दूसरे का जगह अदला बदली कर रहे हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। उसमें क्या होता था, केवल एक आयन जो है जगह से रिमूव, एक जगह से हटाता था, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट बोले। और यहाँ पे चूंकि दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कैटायन को देखें तो कैटायन का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनायन को देखें तो एनायन का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी दोनों कंपाउंड में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता रहे थे कि पहचानेंगे कैसे, दोनों कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, आप पहचान जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो कॉमन रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। यानी इसमें बेरियम क्लोराइड आयन है, कौन सा आयन है,
बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। इसमें कौन सा आयन है? सोडियम आयन और सल्फेट आयन। अब आप प्रोडक्ट साइड में ध्यान देना, बेरियम का किसके साथ कंपाउंड बना है? सल्फेट आयन के साथ, बेरियम सल्फेट, यानी पॉजिटिव आयन इसका, नेगेटिव आयन इसका। यहाँ क्या है? सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन इसका है, नेगेटिव आयन इसका, सोडियम और क्लोराइड। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड बना है, यानी आयंस का एक्सचेंज करके जो प्रोडक्ट बना है वो आयंस का एक्सचेंज करने के कारण बना है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो तरीका हमने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, रिएक्टेंट भी कंपाउंड और प्रोडक्ट में भी जो दोनों है वो दोनों कंपाउंड है। ओके, और देखिए अब इसी में आप देख रहे हैं ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे HNO3 reacts with sodium hydroxide, it forms sodium nitrate and releases water। इसमें भी देखिए क्या क्या है, HNO3 में क्या है? H प्लस आयन और नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। NaOH में क्या है? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ से जो H प्लस आयन है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन, इसका पॉजिटिव आयन उसका नेगेटिव आयन दोनों मिलकर क्या बना है? वाटर। ठीक, और ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Na प्लस और NO3 माइनस, ये दोनों मिलकर बना है सोडियम नाइट्रेट। मीन्स इस रिएक्शन में भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज। इसलिए ये भी एक तरह का क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।